अब सवाल पैदा होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइफ? जिंदगी की कोई डेफिनेशन नहीं है, देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ द लाइफ, बट सम कैरेक्टरिस्टिक व्हिच आर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म वी शो दैट दे हैव लाइफ एंड इज कॉल्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म। लाइफ की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो जानदार में पाई जाती है? सबसे पहली खसूसियत जो जानदार में पाई जाती है, जो उसकी लाइफ को शो करती है, वह मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म वो तमाम रिएक्शंस हैं जो जानदार के जिस्म में होते हैं। ऑल द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज द मेटाबॉलिज्म। रेस्पिरेशन, टेकिंग इन एयर एंड एक्सपेल आउट एयर, हवा को जिस्म के अंदर ले जाना और बाहर निकालना, रेस्पिरेशन कहलाता है। ये भी लाइफ की खसूसियत है। एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदार के जिस्म से बेकार मादों को निकालना, एक्सक्रीशन कहलाता है। ये भी लाइफ जानदारों की कैरेक्टरिस्टिक है। ग्रोथ, increase in size, length of organism is known as the growth. It is also characteristic of living organism. Sensitivity, जानदार माहौल में होने वाली तब्दीलियों को महसूस करते हैं और उस पर रिएक्शन करते हैं। Organism receive the stimulus and response, which is known as the sensitivity. It is also the characteristic of living organism. Reproduction, increase in generation of the organism, जानदार की नस्ल में इजाफा is known as reproduction. And taking in food and digest food within the living organism, body of the living organism is known as nutrition. These are the characteristics which show the life of the living organism, but there is no scientific life of the organism. We can say that the meaning of biology is the study of life. Logos also means study of life. Now there are two definitions of the biology. First definition of biology, according to the meanings of the biology, biology is the scientific study of the life. Now, what is the meaning of the scientific study of the life? Let me take the example of frog. We study the respiration of the frog. We study the digestive system of the frog, excretion of the frog, nutrition of the frog, metabolism of the frog. These all processing study under the subject of biology, that is known as the study of biology of the frog. Then now we discuss the next topic, the division of the biology. Basically, there are three main divisions of the biology: zoology, botany, and microbiology. Word zoology, that is composed of two words: zoo, logy. Zoo means animals. Logy means study. The definition of the zoology is that the division of biology deals with the study of animals. बायोलॉजी की ऐसी डिवीजन जिसमें जानवरों का मुताला किया जाता है। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ फ्रॉग. इफ वी स्टडी द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द फ्रॉग, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द फ्रॉग, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द फ्रॉग, नर्वस सिस्टम ऑफ द फ्रॉग, दैट इज स्टडी ऑफ ऑल सिस्टम ऑफ द फ्रॉग इज नोन एज द zoology. Now second discipline of the biology is known as the botany. Botany means plants. The division of biology deals with the study of plants. बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें पौधों का मुताला किया जाता है, बॉटनी कहलाती है। इस ब्रांच के अंदर हम प्लांट्स के स्टेम को स्टडी करते हैं, उसके रूट्स को स्टडी करते हैं, उसके लीव्स को स्टडी करते हैं, इन तमाम पार्ट्स की स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं और इनके फंक्शंस को स्टडी करते हैं। ये बॉटनी कहलाता है। तीसरी बायोलॉजी की मेन डिवीजन है माइक्रोबायोलॉजी, दैट इज कंपोज्ड ऑफ अ वर्ड माइक्रो. माइक्रो मीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म. Microorganisms are those organisms which cannot be seen with the naked eye and can be seen with the help of microscope. ऐसे जानदार जो आंख से नजर नहीं आते बल्कि उन्हें माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जाता है, वो माइक्रोऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। The division of the biology deals with the study of microorganism is known as the microbiology. biology की ऐसी शाख जिसमें माइक्रोऑर्गेनिज्म का मुताला किया जाता है, वो माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। Let we take the example of yogurt, दही. हम दही खाते हैं लेकिन हमें उसके बैक्टीरिया नजर नहीं आते. When we study the yogurt, a drop of yogurt under microscope, we see that yogurt consists of bacteria which are spherical in shape. These bacteria are known as the cocci bacteria. Now, bacteria in the yogurt can be studied with the help of microscope. This study is known as the microbiology. In this way, amoeba also studied under microscope, and these are microorganisms. Next biology की बात जो मैं आपको डिस्कस करूँगा वो है हिस्टोलॉजी. हिस्टोलॉजी
टेक द ड्रॉप ऑफ ब्लड, हम किसी भी शख्स का खून का एक कतरा देते हैं और उसको माइक्रोस्कोप के लिए उसका मुताला करते हैं। तो माइक्रोस्कोप में ब्लड के जो ब्लड का सैंपल होगा उसमें बेशुमार छोटे छोटे सेल्स नजर आएंगे। सेल्स का एक ग्रुप नजर आएगा। ग्रुप ऑफ सेल्स which are present within the blood are known as tissue। टिश्यू क्या होता है? सेल्स का एक ग्रुप होता है जो स्पेसिफिक फंक्शन काम से अंजाम देता है। तो लॉजी का मतलब स्टडी है। हिस्टोलॉजी की डेफिनेशन ये है माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू। आप कोई भी टिश्यू का माइक्रोस्कोप के जरिए मुताला करते हैं, जैसे हम ब्लड की टिश्यू लेके उसको माइक्रोस्कोप के जरिए स्टडी करते हैं, ये मुताला करना हिस्टोलॉजी कहलाता है। सेकंड ब्रांच इज सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेलीज। एक सेल और सेल के अंदर जितने हिस्से पाए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेलीज, उन ऑर्गेनेलीज की दो चीजों को स्टडी करना। नंबर 1 इनकी स्ट्रक्चर को स्टडी करना, नंबर 2 इनके फंक्शन काम को स्टडी करना, ये सेल बायोलॉजी कहलाता है। फॉर एग्जांपल ये आपके सामने मैंने एक सेल बनाया और सेल के अंदर ये मुख्तलिफ हिस्से मौजूद हैं। एक सेल का पार्ट ऐसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा सेल का पार्ट ऐसे कहते हैं राइबोसोम्स। ये सेल के जो छोटे छोटे हिस्से हैं ये कहलाते हैं ऑर्गेनेलीज, ठीक है। और ये सेल की स्ट्रक्चर क्या है? सेल का सेंटर वाला हिस्सा न्यूक्लियस कहलाता है, आउटर पार्ट जो है वो लिक्विड टाइप पार्ट साइटोप्लाज्म कहलाता है, आउटर लेयर इज नोन एज द सेल मेम्ब्रेन। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। हमने कहा सेल बायोलॉजी में हम सेल की स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं और हर सेल का अलग फंक्शन होता है। जैसे आई सेल्स का अलग फंक्शन है, ब्रेन सेल्स का अलग फंक्शन है। दूसरी चीज, हम सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन को भी स्टडी करते हैं। जैसे लाइक ये ऑर्गेनेली है माइटोकॉन्ड्रिया, मैंने इसके सामने आपकी स्ट्रक्चर ड्रॉ की और इसका फंक्शन क्या है? इट इज यूज्ड फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है। ये एक स्ट्रक्चर है राइबोसोम्स, ये भी एक ऑर्गेनेली है, इसका फंक्शन है दैट इज यूज्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो सेल बायोलॉजी में हम सेल की स्ट्रक्चर और फंक्शन और सेल के ऑर्गेनेलीज की स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों चीजों का मुताला करते हैं। इसके अलावा हम सेल बायोलॉजी में सेल डिवीजन का मुताला भी करते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, ये सेल डिवाइड होकर नए सेल्स बनाता है। वो सेल जो डिवाइड होता है इसे कहते हैं पेरेंट सेल, और जो न्यू सेल्स बनते हैं व्हिच आर नोन एज द डॉटर सेल्स। एक सेल डिवाइड होकर नए सेल्स बनाए, इस प्रोसेस में कहते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का मुताला भी सेल बायोलॉजी के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट बायोलॉजी की ब्रांच है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी बेसिकली दो अल्फाज के मिलने से बना है, फिजियो और लॉजी। फिजियो का मतलब है फंक्शन, फिजियो का मतलब क्या है? फंक्शन, काम। लॉजी का मतलब है मुताला। फिजियोलॉजी क्या है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस शाख में हम जानदार के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों का मुताला करते हैं। फॉर एग्जांपल लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट पार्ट्स हैं। इंसान के जानदार के जिस्म का एक हिस्सा हार्ट है। हार्ट इज यूज्ड फॉर पंपिंग ब्लड। हार्ट ब्लड को पूरे जिस्म की तरफ धकेलता है। आई इज यूज्ड फॉर विजन, देखने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये आंख का फंक्शन है। और लीफ पौधा है, इसका फंक्शन ये है दैट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड, खुराक बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी पार्ट्स के फंक्शंस का मुताला करना क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी। जेनेटिक्स। बेसिकली द वर्ड जेनेटिक इज derived from the gene. Genetics मतलब जीन से निकला है। What is the gene? That is the structure of the cell. Central part of the cell is known as nucleus. Within the nucleus, structure is present. That structure is known as chromosome. ये structure जो nucleus के अंदर मौजूद होती है ये chromosome कहलाती है। Chromosomes के ऊपर छोटे-छोटे genes मौजूद होते हैं। Just like these genes are present on chromosomes. Basically genes control the traits. कोई भी खसूसियत जो जानदार में होती है उसको जीन कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल स्किन कलर इज अ ट्रेट दैट इज कंट्रोल्ड बाय 2 जीन्स। हमारा जो स्किन का कलर है वो ब्लैक है या वाइट, उसको 2 जीन्स कंट्रोल करते हैं। और इसी तरह हेयर कलर है, ये भी खसूसियत है, ट्रेट है। तो किसी भी खसूसियत को बेसिकली 2 जीन्स मिलकर कंट्रोल करते हैं और जीन्स क्रोमोसोम्स के ऊपर मौजूद होते हैं, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। अच्छा, जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स में हम जीन्स को स्टडी करते हैं। वो जीन्स जो स्किन कलर को कंट्रोल कर रहे हैं, वो जीन्स जो हेयर कलर को कंट्रोल कर रहे हैं, और इसी तरह जिस्म में जो बेशुमार खसूसियात हैं उनको जीन्स कंट्रोल करते हैं। हम उन जीन्स को स्टडी करते हैं। और दूसरा, जीन का इनहेरिटेंस, विरासत में क्या किरदार होता है? विरासत का मतलब ये होता है
पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर होता है। ये खसूसियत का मुंतकिल होना इनहेरिटेंस कहलाता है। तो इनहेरिटेंस में जीन अपना किरदार अदा करता है। तो जेनेटिक्स ब्रांच में हम जीन्स को भी स्टडी करते हैं और इनहेरिटेंस में जीन्स का जो फंक्शन है उसको भी स्टडी करते हैं। ये मुताला करना जेनेटिक्स कहलाता है। नेक्स्ट ब्रांच बायोलॉजी की एम्ब्रियोलॉजी कहलाती है। बेसिकली एम्ब्रियोलॉजी दो अल्फाज के मिलने से बना है, एम्ब्रियो और लॉजी। एम्ब्रियो बेसिकली अगर हम एक मिसाल लें, मुर्गी का अंडा जो है वो 21 दिन बाद मुर्गी के अंडे से चूजा बनता है। जो ही अंडे के अंदर चूजा बनने का प्रोसेस शुरू होता है तो वो ब्लड बन जाता है उसमें और उस तरह ऐसा ऐसा जानदार के मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स बनना शुरू हो जाते हैं। अंडे में जो जानदार बन रहा होता है उस जानदार को कहते हैं एम्ब्रियो, ठीक है। और लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना। एम्ब्रियो से 21 दिन बाद मुकम्मल एक चूजा बन जाता है। जितने मराहिल होते हैं एम्ब्रियो से इंडिविजुअल जानदार बनने तक, इन तमाम मराहिल को हम नाम देते हैं डेवलपमेंट। यानी एम्ब्रियो से लेकर उसकी मुकम्मल जानदार तक जितनी डेवलपमेंट है इसका मुताला करना एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल, यानी बनने वाले जानदार से नए जानदार बनने तक जितने डेवलपमेंट के मराहिल हैं, स्टेप्स हैं, उनका मुताला करना एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट ब्रांच इज टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। इस ब्रांच के बेसिकली दो हिस्से हैं। नंबर 1, इसमें जानदारों को नाम दिया जाता है, नेमिंग की जाती है। दूसरा, जानदारों के ग्रुप्स बनाए जाते हैं और सब ग्रुप्स बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल नेमिंग में ह्यूमन का नाम बायो में रखा जाता है होमो सेपियन। इसी तरह फ्रॉग, इसका नाम रखा जाता है राना टेग्रीना। तो तमाम जानदारों को, गुलाब के पौधे का नाम है रोजा इंडिका। तमाम जानदारों को नाम देना नेमिंग कहलाता है। और दूसरा, इसमें हम जानदारों के ग्रुप्स और सब ग्रुप्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल एनिमल्स के दो ग्रुप्स हैं, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स वो जानदार हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है। दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच हैव वर्टिब्रल कॉलम आर नोन एज वर्टिब्रेट्स एंड दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच डू नॉट हैव वर्टिब्रल कॉलम आर कॉल्ड इनवर्टिब्रेट्स। नाउ वर्टिब्रेट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 categories: fishes, reptiles, amphibia, mammals and birds. We see that first of all we classify the animal into 2 categories, that is known as groups, and we further divide the vertebrates into 5 categories which is known as subgroups. So here we see that we divide the animals or classify the animal into groups and subgroups. This classification of organism into groups and subgroup is known as the taxonomy. Taxonomy, we study 2 things in taxonomy. First, naming, in which we give name to any animals or plants, and second, we classify the groups into organism into groups and subgroups. इसमें हम किसी भी जानदार का ग्रुप बनाते हैं और मजीद छोटे-छोटे ग्रुप्स बनाते हैं। पैलियोंटोलॉजी बेसिकली पैलियोंटोलॉजी दो अल्फाज के मिलने से बना है, पैलियोंटो एंड लॉजी। पैलियोंटो मीन फॉसिल्स। फॉसिल्स वो जानदार हैं जो आज से हजारों साल पहले मौजूद थे। अब एक भी जानदार जिंदा मौजूद नहीं है, ऐसे जानदार फॉसिल कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल डायनासोर्स। लॉजी मीन स्टडी। तो इस ब्रांच की डेफिनेशन ये, इट इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। इसमें हम फॉसिल्स का मुताला करते हैं व्हिच आर द रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। फॉसिल नापैद जानदारों के बाकियात हैं। ये ऐसे जानदार, एक्सटेंट जानदार ऐसे होते हैं जो खत्म हो चुके हैं, एक भी जानदार दुनिया में मौजूद नहीं है। इनके बाकियात में इन जानदारों की हड्डियां या तो हमें रॉक्स, चट्टानों में मिलती हैं या जमीन के अंदर हमें इनका स्केलेटन मिलता है। तो इन स्केलेटन से हमें जजमेंट होती है कि जानदार आज से हजारों साल पहले मौजूद थे और मौजूद नहीं है। इन जानदारों का मुताला करना पैलियोंटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट ब्रांच इज द एनवायरमेंटल बायोलॉजी। इट
ह्यूमन मेक द सोसाइटी एंड कॉलोनीज, और इंसानों का माशी में क्या तर्ज अमल है, आपस में एक दूसरे के साथ क्या रवैया है, इन तमाम चीज़ों का स्टडी करना सोशल बिहेवियर कहलाता है। सेकेंड ब्रांच इज नाउन पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट। बायोलॉजी की वो शाख जिसमें हम पैरासाइट्स का मुताला करते हैं। बेसिकली पैरासाइटोलॉजी दो अल्फाज के मिलने से बना है, पैरासाइट्स एंड लॉजी। लॉजी मीन स्टडी करना, पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स आर द ऑर्गेनिज्म दैट टेक फूड एंड शेल्टर फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इन रिटर्न हार्म देम। ऐसे जानदार जो जिंदा जानदारों से फूड खाना और शेल्टर हिफाजत हासिल करते हैं और मुतबादल उनको नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे जानदार पैरासाइट्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल इंसानों के सरों पर जुएं पाई जाती हैं चंद, तो वो जुएं जिंदा जानदारों से फूड भी लेती हैं और शेल्टर भी हासिल करते हैं। तो ऐसे जानदार जो फूड लें और शेल्टर हासिल करें वो पैरासाइट्स कहलाते हैं। इसी तरह मॉस्किटो जो है ये बाइट करता है, तो मॉस्किटो बाइट करके ब्लड हासिल करता है, तो ऐसे जानदार जो फूड और शेल्टर हासिल करें वो पैरासाइट कहलाते हैं। द स्टडी ऑफ द पैरासाइट, फॉर एग्जांपल हम स्टडी करते हैं मॉस्किटो को, किसी भी पैरासाइट्स को, उसका मुताला करना पैरासाइटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट ब्रांच इज द बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेक सब्सटेंसेस फॉर वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग। बायोटेक्नोलॉजी में हम ऐसे जानदारों का मुताला करते हैं जो ऐसे सब्सटेंसेस बनाते हैं जो इंसानियत के लिए फायदेमंद हो। फॉर एग्जांपल कुछ बैक्टीरिया हार्मफुल होते हैं लेकिन कुछ बैक्टीरिया बेनिफिशियल भी हैं, यानी कुछ बैक्टीरिया हमें फायदा देते हैं। हम इन बैक्टीरिया से बेनिफिट क्या लेते हैं? जस्ट लाइक जब हम दही बनाते हैं तो गर्म दूध के अंदर हम दही का एक चम्मच यूज करते हैं, वो दही का एक चम्मच जो है उसमें बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, बैक्टीरिया लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब बैक्टीरिया दही दूध के अंदर क्या करता है, डिवाइड होता है, अपनी नस्ल बढ़ाता है और लैक्टिक एसिड रिलीज करता है। वो लैक्टिक एसिड दूध को दही में कन्वर्ट कर देती है। तो इस तरह हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म सब्सटेंसेस बनाते हैं और वो सब्सटेंसेस इंसान के लिए फायदेमंद होते हैं। इसका मुताला करना इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी बेसिकली टू वर्ड्स के मिलने से बना है, इम्यूनो एंड लॉजी। इम्यूनो मीन डिफेंस सिस्टम, इंसान का ऐसा निज़ाम, इम्यून सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जो इंसान को बीमारियों से महफूज करता है। ठीक है। दूसरा वर्ड है लॉजी। लॉजी का मतलब मुताला करना। इट इज द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ ह्यूमन व्हिच डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट द इन्वेडिंग माइक्रोब्स। ऐसी ब्रांच है जिसमें हम इंसान के इम्यून सिस्टम का मुताला करते हैं। इम्यून सिस्टम इंसान को हमला करने वाली जरासीमों से महफूज करता है। अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स पैदा किए हुए हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स विच आर प्रेजेंट इन अवर ब्लड आर यूज्ड टू किल द जर्म्स। हम जो भी खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, अगर उसमें जरासीम मौजूद है तो कुदरती तौर पर हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स आने वाले सारे जरासीमों को मार देते हैं। ऐसा हमारा सिस्टम इम्यून सिस्टम कहलाता है, जिसे हम मुदाफ़ियती निज़ाम भी कहते हैं। मुदाफ़ियती निज़ाम का मुताला करना इम्यूनोलॉजी कहलाता है। सेकेंड ब्रांच इज कॉल्ड द एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी दो अल्फाज के मिलने से बना है, एंटोमो और लॉजी। एंटोमो मीन इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े। दूसरा वर्ड है लॉजी। लॉजी का मतलब है मुताला करना। इट इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़ों का मुताला। जस्ट लाइक हम एक बटरफ्लाई लेते हैं, उसके बॉडी के पार्ट्स को मुताला करते हैं, ठीक है। इसी तरह कोई ड्रैगन फ्लाई लेते हैं, उसके बॉडी के पार्ट्स का, किसी भी इंसेक्ट्स को लेकर उसके बॉडी के सारे सिस्टम्स और पार्ट्स का मुताला करना एंटोमोलॉजी कहलाता है। लास्ट ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी इज नोन एज द फार्माकोलॉजी। इट इज द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द ह्यूमन बॉडी। बायोलॉजी की इस ब्रांच के अंदर हम ड्रग्स का मुताला करते हैं और ड्रग्स का इंसान के जिस्म पर क्या इफेक्ट्स होते हैं उनका मुताला करते हैं। अक्सर जिन बंदों को नींद नहीं आती तो डॉक्टर उन्हें रेस्ट के लिए लैक्सिलियम की टेबलेट देते हैं। लैक्सिलियम इज अ ड्रग। तो इस ब्रांच में हम लैक्सिलियम बनती कैसे है, उसमें क्या चीजें शामिल होती हैं, इसका मुताला करते हैं। और लैक्सिलियम जब इंसान यूज करता है तो उस पर क्या इफेक्ट होता है, इससे नींद प्रॉपर आ जाती है, जिस्म को सुकून मिलता है। तो ऐसी ब्रांच जिसमें हम किसी भी ड्रग्स का और उसका ह्यूमन बॉडी पर क्या इफेक्ट्स होता है उसका मुताला करते हैं, ऐसी ब्रांच को